उसको कहीं भी बात ये करो पैसा मिलेगा बस, तो उसको सही लगता है कि हाँ सही है, फर्क नजर आएगा। आपको बच्चों को कभी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी बच्चों को यूं नहीं बोलना पड़ेगा शट डाउन, कीप क्वाइट, ये सब बकवासी। Good afternoon, everyone. Here I am going to discuss with you about some theories. Surely these theories will going to help you a lot. We have n number of theories are there. Some content theories are there. Maslow's need hierarchy theory, Herzberg's motivation theory, need theory, Alfred's ERG theory, and some of the process theories are there. Bloom expectancy theory, Adam equity theory, goal setting theory, reinforcement theory. Before discussing these theories, we need to discuss first that how a student learn, or which kind of method is more useful for learning. Yes, you can see there that after 2 weeks we tend to remember. After 2 weeks we tend to remember. We means it include student, it include we people, it include anyone. So after 2 weeks, if you have studied anything and after 2 weeks, what you will remember? If you just have been read that particular thing, then you are going to remember 10% of what you have read. So reading is, can we say that reading is very impactful? Not, it is not so much impactful. Only 10% you will remember. If you are just reading anything, you might have read n number of things till date, but still you have remember only few of the things, right? Hearing words, it means you are hearing something. You are hearing me now. So after 2 weeks, if I am going to ask you something, you hardly remember 20%. But how much? 20%. Whatever you hear, you will remember about 20%. And whatever you see, you remember around 30%. You remember around 30%. Say for example, you are seeing this. So you will remember on an average 30% whatever you have seen, that particular triangle you have seen, and you will remember around 30% of this whatever you have seen. Now come to the point that when you are delivering any lecture, you ask a student to simply read something. You just give your lecture so a student hear you or listen you. I must say hear you, not completely listen you. And whatever you wrote down on the board, they will going to see you. So by this delivering of lecture, you can that the learning of outcome can be up to the 30%. Whatever the topic you are dealing, they will remember around 30% after 2 weeks. After 4 weeks, they may lost that 30% also. So how you can make your lecture more effective? You can make your lecture more effective by showing them any presentation. It may be a video presentation, it may be a demonstration, it may be a that you bring the student at particular location and you are showing that particular thing. So practically when you are showing anything, that it is possible that a student can remember around 50% of whatever you have been taught to them. Now, if you want that they should remember more, so what you need to do is that participation in discussion, giving a talk. It means you need to engage the student with a particular topic. Now practically what you can do, you have been taught a particular topic. Students have been gone through that particular topic, they have also read that particular topic. Everything, and even you have given a good presentation also. After that you think that you want to increase their understanding about that particular topic. So what you need to do? You just need to do one thing, that you should gather the student and you should give them a topic to discuss. You may divide that particular things you should divide the student into you can say 2 parties, and they can have a group discussion on that particular topic.
that whether this one is right or this one is wrong. Whatever in different ways you can apply. We are very much aware about the debate shows because we used to watch a number of news channels. So you are very much aware about it. So likewise the channel, the news channel are organizing the debates. You should also organize the debate. Next thing, if you want to increase more understanding, what you need to do is doing a dramatical presentation, simulating the real experience, doing the real things. It means when the student do the things practically, they will learn more, or you can say that 90% of the things they will remember. You just given them a topic for a presentation, you just given a topic for the drama, and suppose they are going to perform a drama in that particular topic, then surely they will learn that, or surely they will understand 100%, almost 90% they will understand. This is what this theory given by the Iyer says. And practically we also experience that this theory is somehow it is very much correct. So what we need to do, I know that you have been completed your syllabus, almost you have completed 90% of syllabus is already covered. Now instead of simply asking for question, yes, I have given you 5 questions, remember it, and you just ask them. You just need to recall that particular questions and answer. It is very old method, very old method. Instead of beating up the students, you should engage the student with that particular topic. You should give them a certain amount of engagement. You should assign them some topic for presentation. You should assign them for particular making any pictures, making any diagram, you can say simply you should give them project work. That is why you can also I have an example. Say for example, CBSE every year CBSE conducts practical exam also. At the time of January, February, we usually students used to prepare practical. We used to prepare project work. Not only in science subject, they are also preparing project work in commerce subject also. So by that way, they understand the topic well. Suppose if a student have prepared a project on, say for example, money and banking, so they will understand that particular topic very well. In that particular project, you may also conduct Viva. By conducting the Viva, surely the student will prepare themselves. And in this way, you can creatively engage them so that their understanding about any topic can be enhanced. Instead of applying the traditional way, instead of applying beating the students, instead of applying the rudely methods, you should apply the new and creative ways for getting them understand the topic. ज़्यादा समझ में आता, सुनना देखना पढ़ने से, और जब बच्चा उस चीज़ को करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, प्रैक्टिकल कुछ करता है, तो उसको और उससे अधिक 90% तक वो याद कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल जी मैं बात करूं कि आपका सारा आपने पढ़ा दिया, सब कर दिया, अब आपको मान लीजिए एक टॉपिक है मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक आप बताएं, आपके सब्जेक्ट का कोई से भी एक टॉपिक बताएं। हाँ हिंदी में बोलिए। ऐसे मतलब जैसे छोटे बच्चों की क्लास है, जैसे कुछ बता रहे हैं ना, तो उनको जब बच्चों को देखेंगे तो उससे उनको रिकॉग्निशन होगा कि वर्ड को कैसे क्या है। अब बच्चों को देखने से याद हो गया, अब उसको लिखवाएंगे तो लिखने से थोड़ा समझ में आएगा। उसको अगर कुछ और नहीं करेगा तो उसको हम सिंगिंग के तौर पे ले सकते हैं, बच्चे जिसमें थोड़ा इंटरेस्टेड भी हों। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा और हायर क्लास की तरफ चलते हैं। मान लीजिए सर आप है, नवदीप सर आप है, तो आप मान लीजिए कि आप कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? आप साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में ऐसा कोई टॉपिक बताइए जिसमें मतलब आप डिबेट करवा सकते हैं। नहीं, मान लीजिए डिबेट करवा रहे हैं आप, है ना, तो डिबेट करने के लिए तो दो बात होना चाहिए, बनाई जा सकती बात तो,
है ना। तो जैसे आप मान लीजिए आप हमें हम लोगों में आप इन लोगों में डिबेट करवाना चाहते हैं, क्या टॉपिक देंगे आप? कोई भी एक टॉपिक मान लीजिए, साइंस से रिलेटेड हाँ आपका जो भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड। कुछ भी एक चीज जैसे कि चलो ठीक सर, आप सोशल साइंस में आप क्या टॉपिक देना चाहेंगे कि बच्चे जो डिस्कस करें? why dates are important. So somebody will say नहीं, एक्चुअली वो वाई डेट्स आर इम्पोर्टेंट इज डिफरेंट थिंग। आई एम आस्किंग ए टॉपिक अबाउट फॉर डिस्कशन फॉर दिस वन इज राइट और दिस वन इज राइट। because many historians they think dates are not important that much, they are useless, but some of the historians they think dates are very much important because if you want so one group will say in the favor and another group will say in the Likewise, you can take, say for example, if I am going to teach social science, so I can assign them a topic of socialist economy, capitalist economy, or socialism or capitalism. Some student may speak about capitalism and some student are speaking about socialism. हिंदी में बोला जाए तो पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, दोनों के बारे में बीच में जो है उनमें डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आप इंटरनेशनल जो है उसके बारे में बता रहे हैं। एक जो है वो लिबरल पॉलिसी के बारे में बात करें, एक जो है वो हार्ड पॉलिसी के बारे में बात करें। आपने एक जो है एक की बात कर दी कि जो है से फॉर एग्जांपल आप रशियन जो यूनियन है उनके फेवर में एक बच्चों को उठा दिया, एक जो अमेरिकन जो है उनके फेवर में उठा दिए। आप मान लीजिए आपको स्टेट्स के बारे में ही बताना है, तो आप जो है नॉर्थ साइड के स्टेट बांट दिए, साउथ साइड के स्टेट बांट दिए, और उनमें दोनों में क्या बेटर है, कौन बेटर है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि बेटर कौन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि बच्चा डिस्कशन करते करते वो बात को बहुत अच्छे से समझ जाए। उसका हमारा पर्पस सिर्फ सिखाना है। यदि मान लीजिए उस बीच में यदि कोई बात उसके दिमाग में गलत इंस्टिल हो रही है, तो वो उसको लास्ट में बीइंग ए अच्छे टीचर के तौर पर उसको आपको क्लियर भी करना है कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, या आज आपको वो गलत जा रहे हो तो नहीं जा रहे हो तो कोई बात ही नहीं। हाँ खैर सर आप कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि आपने डिबेट का बताया, तो एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि होता क्या है, जैसे मैथ्स हम पढ़ रहे हैं तो होता क्या है, बच्चा गोल को गोल ही समझता है। जैसे कि सिक्का क्या है तो बोलेगा गोल है, फुटबॉल क्या है गोल है। अब जब तक उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे नहीं, जैसे पढ़ा दिया कि सिक्का गोल होता है और फुटबॉल भी गोल होता है, अब उसको केवल लिखने में आ गया है गोल है, लेकिन जब वो उसको देखेगा तो वो बहुत सारी चीजें समझेगा कि सिक्के में गोल होता तो है लेकिन वो केवल बेस ही होता है, समतल प्लेन फिगर होता है। लेकिन जब फुटबॉल में आती है तो हाइट आ जाता है। जब वो देखेगा उसके बाद अपन उसको बता देंगे, उसके बाद वो एग्जाम्पल देगा खुद, तो ये 50% से ऊपर का लेवल चला जाएगा। वो बच्चा खुद करके बता रहा है। आप कह देंगे मतलब है कि हमें जो है बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए देना चाहिए, और प्रैक्टिकल वो प्रेजेंटेशन करके वो जो है आप उसको आपने आज 5 बच्चों को असाइन कर दिया कि कल आप ये टॉपिक, या सभी बच्चों को असाइन कर दिया कि आपको ये टॉपिक प्रेजेंट देना है। मान लीजिए आपके पास आपने सिलेबस कंप्लीट हो गया, 10 से 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब वो 15 दिन में उनसे सवाल जवाब करने के बजाय, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के बजाय आपने उनको 15 दिन के लिए मतलब आपने टॉपिक दे दिए, अब उनको जो है तैयार करके लाना है। आपको मालूम है जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं उनको पहले ही ले लो, बाद में फिर बाकी बच्चे भी करते जाएंगे, तो आपकी क्लास भी इंगेज रहेगी। और फ्रेंकली स्पीकिंग बीइंग ए टीचर में बताऊं, आप भी आराम से बैठ सकते हैं उसमें, है ना। आप भी आराम से बैठ सकते हैं, बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है, क्लास पूरी सुन रही है। जो बच्चे दे रहे हैं प्रेजेंटेशन उसको आप जो है उसके लिए क्लैप करवा दो, उसको आप जो है कोई छोटा मोटा गिफ्ट ही दे दो, एक 5 रुपए का पेन दे दो। देखिए वो 5 रुपए का पेन जो है आपका 50,000 का काम करेगा। कार्ड दे दो ना आप, तो अपने हमारे पास तो है कार्ड, दो बताओ मैडम कार्ड कैसा होता है। तो जो है आपने कार्ड दे दिया बच्चे को, कार्ड नहीं दिया कार्ड दे दिया, तो जो है आपने बच्चे को कार्ड दे दिया, तो जो है वो घबरा गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो मैं कार्ड ही बोल रहा था। तो कार्ड आपने बच्चों को दे दिया, बच्चा वैसे ही खुश हो जाएगा। तो ये आप उसको क्रिएटिवली क्या किया आपने,
इंगेज कर लिया, पूरी पूरी क्लास आपकी इंगेज है। आप बच्चे के नज़र में आप अच्छे भी बनेंगे कि यार सर हमें बड़े अच्छे टॉपिक देते हैं यार, और जो है सर जो है वो बच्चे सीख भी रहे हैं ना, बजाय कि उनको हमें नेगेटिव तरीके अपनाने के बजाय हमें पॉजिटिव तरीके ही अपनाना चाहिए। आप से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मियाँ मैं बोला और आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया, तो फिर तो इतना अच्छा नहीं लगता है। जब बजाय कि यदि आपको भी मौका बोलने का मौका मिले तो उस समय तो आप शर्माते, लेकिन बाद में अच्छा लगता है ना। तो ये बात बच्चों के साथ भी अप्लाई होती है कि भाई जो है हम उसको बोलने के लिए मौका दें, प्रेजेंटेशन दें। चलो खैर ठीक है। और आप मान लीजिए आप डिबेट के लिए आप डिबेट के लिए टॉपिक देंगे तो क्या टॉपिक देंगे आप? जोर से बोलो सर। एनिमल और उनके प्रोडक्ट, ये तो प्रेजेंटेशन हो गया। मान लो डिबेट करवाना हो तो कोई टॉपिक सोचा क्या आपने? अब ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, मतलब जिनको भी बच्चे जो थोड़े डिबेट करने लायक हैं, है ना, मतलब ऐसा भी नहीं अभी जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो तो डिबेट करने जाओगे तो क्लास आपकी खराब डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डिबेट नहीं कर पाएंगे। डिबेट से मतलब है थोड़ा जिनके अंदर बच्चे थोड़े हायर क्लासेस में हैं, मतलब मिडिल क्लास हायर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप तय करें कि आपके अपने जो पढ़ाया उसमें से कितने में टॉपिक डिबेट के लिए दे सकता हूँ। आप बैठिए सर। आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पे अमित देवगन का शो आता है ना? कौन सा शो आता है, आपने किसी ने देखा क्या? अरे अमित देवगन का शो आता है, मैं उसको सालों से मैं कहीं लंबे समय से देख रहा हूँ। मैं शाम के टाइम शो आता है, बड़ा डिबेट के लिए बड़ा शो है, बड़ा फेमस शो है उसके। तो आप उनको हर रोज टॉपिक मिल जाता है, हर रोज डिबेट के लिए टॉपिक मिल जाता है। तो वो तो उनके पास तो कोई तय भी नहीं मटेरियल, उन्होंने कोई इसको पहले पढ़ा भी नहीं है कोई। भाई न्यूज़ तो न्यू है, न्यूज़ इसलिए ही न्यूज़ है क्योंकि वो न्यू है ना। तो वो कोई भी नई बात आती है उस बात पर कोई ना कोई रोज के रोज डिबेट के टॉपिक आ जाते हैं। रोज के लोग बुलाते भी हैं, नए लोग आते भी हैं, उस बात पर डिस्कस भी करते हैं। और वो डिबेट आप खुद देख लो तो आपको भी वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको भी सब पता चल जाए संबित पात्रा कौन है, और जो है ये जो बीजेपी की तरफ से कौन बोलने आ रहा है, कांग्रेस तरफ से कौन बोलने आ रहा है, और जो है डिफेंस में कौन कौन खास लोग हैं जो बोलते हैं आमतौर पर इसके बारे में, जो है जो कश्मीरी पंडितों के बारे में कौन बोलते हैं, उसकी तरफ से कौन कौन आता है, आपको सब बिल्कुल मतलब याद हो जाएगा। वो क्यों याद हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ डिस्कस हो रही है। और हमने यहाँ पर ये जो थ्योरी बोल रही है वो थ्योरी यही बोल रही है कि जो चीज़ डिस्कस होती है, जो चीज़ों को लिए हम ड्रामा करते हैं, जो चीज़ों को हम प्रेजेंटेशन देते हैं, वो चीज़ें 70 से लेकर के 90% तक याद। खैर आई होप कि आपको जो आज का सेशन है वो नॉलेजफुल लगा हो और आप लोग इसे कुछ ध्यान देंगे, और इसके पहले जो मेन चीज़ें आपसे बातचीत की है उन चीज़ों पर भी आप ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।